Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is methods of collecting primary data. ठीक है, की प्राइमरी डाटा ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਹੈ 6 ਟੋਟਲ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ 2 ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ। ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਏਜੰਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ठीक है, एजेंट लाइक आ डीलर, ये सारी अपनी हेल्प करता कोरसपोंडेंट। ठीक है, जिमें आपां की है मार्केट दे विच, जिमें हुण आपां नूं मान लो अपने कोले सेंटर च अपने कोले मोगा, ठीक है, या कोटपूरा ते सॉरी अपने कोले लुधियाना। ठीक है, लुधियाना मोगा एंड कोटपूरा अपने कोले ये सारे आ रहे हैं। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਉਹ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪਰਸਨ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਲੈਕਟਡ ਇਨ ਯੂਜੂਅਲ ਮੈਨਰ, ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਲੈਕਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੈਦਰ ਸਮ ਲੋਕਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਆਰ ਅਪੋਇੰਟਡ in different area to pass on the information to investigator regularly for further processing। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸ ਗਏ ਆ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਡੀਲਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਏਰੀਆ ਚਾਹੇ ਇਹਦਾ ਵਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਵਾਈਡ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਹੀ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਕੁਇਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ ਫਰੋਮ ਪਲੇਸ ਆਫ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਲੇਸ ਆਫ ਹੈਪਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਊਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਉੱਥੇ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਨਾ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਕੁਛ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰਸਨ ਆਪਾਂ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਰਿਟਸ ਵਾਈਡ ਕਵਰੇਜ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਕਨੋਮੀਕਲ ਮੈਥਡ, ਇਕਨੋਮੀਕਲ ਮਤਲਬ ਸਸਤਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ, ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਸ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਐਕੂਰੇਸੀ ਐਂਡ ਯੂਨੀਫੋਰਮਿਟੀ। ਐਕੂਰੇਸੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫੋਰਮਿਟੀ ਮਤਲਬ ਇਕਸਾਰਤਾ। ਐਕੂਰੇਸੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਯੂਨੀਫੋਰਮਿਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਦੱਸਦੀ ਹੋਵੇ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਐਕੂਰੇਸੀ ਐਂਡ ਯੂਨੀਫੋਰਮਿਟੀ। ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਜੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਲਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਗਲਤ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਬਾਇਸਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਬਾਇਸਡ ਮਤਲਬ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਰਿਲਾਇਬਲ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਕੁਐਸ਼ਨਰੀ ਐਂਡ ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ। ਕੁਐਸ਼ਨਰੀ ਐਂਡ ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। फर्स्ट अपने को की अकॉर्डिंग टू दिस मैथड डाटा आर कलेक्टेड क्वेश्चनरी और शेड्यूल विच आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यूज ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिकल इंक्वायरी। कि आप किहदे द्वारा करनी है, क्वेश्चनरी द्वारा करनी है या शेड्यूल द्वारा करनी है, दोनों ही अपने माइंड के होनी चाहिए जिदा का भी स्टैटिकल इंक्वायरी है, ठीक है। तो क्वेश्चनरी हम अपने को जी क्वेश्चनरी आप सैट करते हैं, क्वेश्चन वो बिल्कुल सही होने चाहिए हैं, मतलब जो भी रिस्पोंडेंट उन्होंने रिस्पोंडेंट कौन आ जो आपको आंसर दिंदा, ये दो तरह की होंगी है। मेल अपने को की है मेल्ड क्वेश्चनरी तो शेड्यूल फिल्ड थ्रू इनैमोरेटर। इनैमोरेटर मतलब जो परसन गणना करनी होंगी है उन्होंने बोल दें, ठीक है। फर्स्ट हम अपने को की है जो अपने को फर्स्ट पॉइंट है जी दो पॉइंट सीगे मेल्ड क्वेश्चनरी मैथड। मेल्ड क्वेश्चनरी मैथड का मतलब की है कि आप बाय पोस्ट चीज़ां भेजते हैं क्वेश्चनरी जो आप फिल करवानी होंगी। मान लो अगर पहला आप परसन जिदा आप डायरैक्ट किया कि डायरैक्ट डीलिंग होंगी सी परसन टू परसन, ये हम डायरैक्ट डीलिंग नहीं होगी, आप बाय पोस्ट भेज देंगे, ठीक है। जिदा जो भी आप इन्वैस्टिगेटर होगा सीधा भेज दूगा तो रिस्पोंडेंट आपको आंसर भेज दूगा। इस मैथड की है क्वेश्चनरी इज प्रिपेयर्ड कंटेनिंग सिंपल एंड डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव पर्पज एंड स्कोप ऑफ इंक्वायरी मतलब जो जांच पड़ताल करने का जो भी अपना ऑब्जेक्टिव होगा वो भी हफ्ते में प्रिपेयर किया जाता। क्वेश्चनरी आर सेंट बाय पोस्ट, कि द्वारा की जाती है पोस्ट के थ्रू की जाती है, वो परसन नूं या रिस्पोंडेंट नूं। रिस्पोंडेंट कौन आ जो आपको आंसर दिंदा वा उस परसन नूं भेजी जाती है जो आपको क्वेश्चन से की दिंदा वा आंसरस दिंदा वा उहदे उत्तर दिंदा वा। वो किहड़ी हुंदी है मेल्ड क्वेश्चनरी। मेल्ड का मतलब भी पता लग गया आपको मेल के थ्रू भेजी गई है, ये इलैक्ट्रॉनिकली हैगी ये बाय पोस्ट भेजी गई है, ठीक है। हम सुटेबल है, सुटेबल किहड़े एरियाज दे विच है जदों मतलब फर्स्ट अपने को की है इनफॉर्मेशन की होवे घट कॉस्ट से होवे, घट कॉस्ट तो अपने आप ही आऊगी, आप बाय पोस्ट भेजते पे हैं, बाय पोस्ट ही बहुत घट खर्चा आऊगा, सिर्फ इनवैलप का आऊगा या स्टैंपिंग का आऊगा, ठीक है। वैन द एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन इज़ वैरी वाइड जियोग्राफिकली, एरिया मतलब जो भी आप इन्वेस्टिगेशन का आया वो एरिया मतलब जो भंगोली खेत्र के तौर पर ज़्यादा वड्डा होवे। वैन रिस्पोंडेंट आर लिटरेट एंड एजुकेट, लिटरेट होंदा पढ़िया लिखिया तो एजुकेट भी, इन्होंने दोनों में एक वर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। रिस्पोंडेंट कौन होंदा वा जो आंसर आपको दिंदा वा वो पढ़िया लिखिया होना जरूरी है, ठीक है। अगर वो पढ़िया लिखिया नहीं होगा क्योंकि आप डायरैक्ट डीलिंग करते पे आप तो बाय पोस्ट भेजिया वा तो बाय पोस्ट जो आप इनफॉर्मेशन भेजी है, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन पढ़ सके की लिखिया है ये। हम ये मैरिट्स की है वाइड कवरेज, वड्डा एरिया होना चाहिए वा, ठीक है, क्योंकि आप बाय पोस्ट भेज रहे हैं। एक चीप मैथड होना चाहिए, सस्ता मैथड होना चाहिए। सस्ता मैथड क्यों आ क्योंकि आप मेल थ्रू भेजी है, उनके खर्चे की आते सिर्फ स्टैंपिंग दे एंड इनवैलप दे, ठीक है, सिर्फ यही आपको खर्चे आते हैं। ओरिजिनल एंड सुटेबल है मतलब हर एक जगह के बहुत ज़्यादा वधिया वा, ओरिजिनल भी होंदा वा। ओरिजिनल क्यों है क्योंकि आप बाय पोस्ट भेजा जोड़े भी परसन वो भेजी सी वो कोल इनफॉर्मेशन पहुँची है। फ्री फ्रॉम बायसनेस, बायसनेस मतलब भेदभाव, भेदभाव तो क्यों फ्री होंगी है ये, भेदभाव तो इसे करके फ्री है क्योंकि जिन्नी भी सारी इनफॉर्मेशन सीगी वो आप मेल के थ्रू भेजी गई है, क्वेश्चन जिन्ने भी सीगे। हुण किसी नूं नहीं पता कि जिन्ने भेजी है वो कौन है किद्दां वा, ठीक है। हुण नेम तो हर एक दे आपां नूं पता, हुण मान लो आप कोई परसन का नेम रखिया, जरूरत नहीं कि जिहदे नाल अपनी दुश्मनी होगा उहदा नेम ही होगा, ही किन्ने सारे नेम हुंदे एक परसन के नाम तो ही, ठीक है। इस करके फ्री फ्रॉम बायसनेस है। हुण डीमैरिट्स की है इलिटरेट रिस्पोंडेंट, इलिटरेट की हुंदा वा जिहड़ा घट पढ़िया लिखिया होगा, जिहड़ा अनपढ़ मतलब जिन्होंने नॉलेज नहीं होंगी उन्होंने बोल दिंने आप रिस्पोंडेंट, ठीक है। हुण क्वेश्चनस लिखे होंगे हैं उन्होंने नहीं पता लग्या तो आंसर किवें देऊगा, ठीक है। रिस्पोंडेंट होंदा वा जो आंसर देना होगा, इसे करके दी ड्रॉबैक बन जाती है। लैक ऑफ इंटरस्ट, इंटरस्ट मतलब वो बहुत ही ध्यान घट दिंदा, उनके कोई इंटरस्टिंग नहीं हैगी, मतलब वो देख ही नहीं रहा कि कदों मैं ये चीज़ां भेजनियां कदों नहीं भेजनियां, इसे करके, ठीक है। हो सकता उन्हें क्वेश्चनस किए भी होण ते सेंड करने भुल गया होवे, तो
क्यों सेंड करने भुल गया, जो वो इंटरस्ट नहीं लेंदा। लैस एक्यूरेट घट एक्यूरेट क्यों आ, मतलब ओरिजिनल नहीं हुंदा ये, क्योंकि हो सकता वा कि जो जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें लिखनी सी उस तरीके नाल प्रॉपर नहीं लिखी, बस सीधा आपदे अकॉर्डिंग आंसर लिखते। इनफ्लैक्सीबल मतलब ये चेंजेबल नेचर की नहीं गी, क्योंकि ये सीधा जो भी हुण क्वेश्चन इन्वैस्टीगेटर हुंदा वा उन्हें मेल के थ्रू भेजी, ठीक है, बाय मेल भेजिया, उन्हें किनू भेजिया, रिस्पोंडेंट नूं भेजिया, तो हुण जो भी सीधा सारी डीलिंग हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चेंज नहीं करता। हुण मान लो डायरैक्ट डीलिंग हुंदी, इन्हां दोवां दी डायरैक्ट डीलिंग हुंदी, अगर इनू कोई इनकुआयरी हुंदी तो वो क्वेश्चन चेंज भी कर सकता सीगा, ठीक है। इस करके हुण ये चेंजेबल नहीं गे, क्योंकि हुण ये आपां भेज चुके हैं तो उवें करने पैने हैं। बायसनैस भी हो सकती है, भेदभाव भी हो सकता वा कि उस परसन नूं ये होवे कि हाँ वो जानदा होवे कि जिन्हें भेजी है तो वो मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, ठीक है। इस करके की है अपने को क्वेश्चनरी, मेल क्वेश्चनरी की है जो इन्वैस्टीगेटर मेल के थ्रू भेजदा, पोस्ट के थ्रू भेजदा वा, तो रिस्पोंडेंट उन्होंने फिल करके दोबारा बैक भेज दिंदा वा। हुण सैकेंड अपने को की है जिहड़ी आपां इनैमोरेटर के द्वारा भरवाई जाती है, ठीक है। हुण इहदे विच की है इनैमोरेटर जिहड़ा हुंदा वा, जिन्होंने आपां इन्वैस्टीगेटर, वो खुद पहलां भरदा वा, ठीक है, फिर वो जांच पड़ताल अगे दी अगे करदा वा। देखो की है इनैमोरेटर विजिट रिस्पोंडेंट पर्सनली विद द शेड्यूल एंड गैट दिस फील्ड, आप परसनली फील्ड करता वा, उन्होंने अपने आप भरदा वा, उन्होंने किसी तो नहीं लेना देना कि उन्हें दूसरे परसन तो भरवानी है, पहला आप भरूगा फिर दूजा नूं पुछूगा। सुटेबल, ये जो एरिया ज़्यादा लार्ज होवे उदों सुटेबल आ, ठीक है। इनफॉर्मेशन आपां पूरी दी पूरी डीपली भी दिती होवे, ज़्यादा दिती होवे। वैन परसनल कॉन्टैक्ट इज नैसेसरी टू गैट कंपलैक्स एंड डिटेल, जो कंपलैक्स नेचर की तो डिटेल बहुत ज़्यादा आपां जरूरी होंगी है, उदों परसनल कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हुण इहदे मैरिट्स की है, एक्यूरेसी एंड रिलायबल। एक्यूरेसी क्यों है, रिलायबल की हुंदा वा, भरोसेयोग। एक्यूरेसी मतलब शुद्ध, ये क्यों है, क्योंकि जिहड़ा इनैमोरेटर परसन है वो खुद शेड्यूल मतलब जो भी इन्वैस्टीगेटर है खुद अपने आप वो जिन्नी इन्फॉर्मेशन वो भरदा वा, सारी सारी जिन्नी मान लो क्वेश्चन से उन्हें सारे आप भरे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग भरे, हिमसैल्फ अपने अकॉर्डिंग भरदा पिया वा, तो बाद भी दूसरे परसन नूं पुछदा वा, ठीक है। उन्होंने हुण आपां जो चीज़ करते हैं आपां नूं पूरा दा पूरा अपने ते यकीन हुंदा, इस करके की है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरी फुल फ्लैज इन्फॉर्मेशन ये उपर होंगी है, क्योंकि आप भरी होंगी, आप एक एक क्वेश्चन नूं फाइंड आउट करके लिखते हैं। एरर फ्री इन्फॉर्मेशन होंगी, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होंगी, क्योंकि आप एक बार जो काम करन लगते उन्होंने 2-3 बारी दोबारा रिपीट चैक करते, इस करके बिना गलती तो होंगी है ये। सुटेबल फॉर इलिटरेट परसन या रिस्पोंडेंट भी लिख सकते हो। इलिटरेट किहड़े होंगे है, ਜਿਹੜੇ घट पढ़े लिखे होंगे उन्होंने वास्ते भी क्यों सूटेबल है, क्योंकि जो इन्वैस्टीगेटर है खुद ही इन्फॉर्मेशन भर रहा वा, इस करके तो हम जो इलिटरेट परसन है वो बोल के भी दस सकता, क्योंकि उन्हें तो बाद में सिर्फ कन्फर्म ही करनी है इन्फॉर्मेशन। डीमैरिट्स की एक्सपेंसिव मैथड है, थोड़ा महंगा मैथड है ये, क्योंकि पहला वो आप भरदा वा, बाद दूजा नूं पुछदा। टाइम कंज्यूमिंग भी हैगी है, हुण सेम उदा ही आप कह सकते हैं कि पहला उन्हें खुद भरी फिर वो दूसरों तो पूछ लिया वा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड इनैमोरेटर्स, जो ट्रेंड इनैमोरेटर मतलब जिन्होंने इन्फॉर्मेशन सही तरीके नाल लिखनी होंगी है वो पूरी तरीके नाल वैल ट्रेंड नहीं होंगे, घट पढ़े लिखे होंगे है। सो इहदे विच ये सारियां प्रॉब्लम्स आपां नूं फेस करनियां पै सकदियां वा, ठीक है।